Hello students, once again we come here just to understand the second topic of the electricity of class 10, that is electric current. So in this video we are going to study about the definition of the electric current, how the electric current is produced, what is the unit of the electric current and which type of physical quantity is electric current. तो ये तीन चार क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में हम लोग देख पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली? सो before the discussing about the electric current, I would like to make you understand about what is the conductor and insulator. Conductor और insulator है क्या? ठीक है. If you are able to understand actual definition, actual conditions of the conductor and insulator, I hope that you are going to understand about the electric current also. So simple, here you can see the definition of the electric current: the flow of charges, the rate of flow of charges. The rate of flow of charges from one terminal to the another terminal is called the electric current. अगर ये कोई एक पर्टिकुलर आपका कंडक्टर है, एक वायर मान लीजिए जिसका टर्मिनल्स है पॉजिटिव से निगेटिव, अगर एक जगह से दूसरे जगह चार्जेस के फ्लो होते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, देन वी से दैट द पर्टिकुलर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हैविंग द करंट इन इट, उसमें करंट है. इज इट ओके? सो एज आई हैव सेड बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इन ब्रीफ, just we have to understand about the conductor and the insulator. So see, what is conductor and insulator? First thing, that about the conductor and insulator, we just have a definition from 6 I hope so 6 क्लास से ही हम लोगों का कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन मिल चुका है. सिंपली द थिंग्स, द मटेरियल, द सबस्टांसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट कंडक्टर. एंड द सबस्टांस विच डज नॉट कंडक्ट electricity or does not produce current, there is no flow of charges, that is what we called it insulator. ठीक है, उसको हम लोग insulator कहते हैं. As for example, plastic, rubber, wood, you can see here the example of the insulator, जिसमें कि करंट का फ्लो ना हो, चार्जेस के फ्लो ना हो, तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं. तो आखिर ऐसा क्या चीज़ होता है? व्हाट इज़ द थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर और इंसुलेटर दैट कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ आर द मैटर, and if it is matter or substances, that means it is made up of the atoms, and if it is made up of the atoms, then obviously these both of them having the fundamental particles electrons and protons and neutrons. electrons, protons और neutrons पाए जाते होंगे. जब दोनों में electrons है, दोनों में protons है और दोनों में न्यूट्रॉन्स है, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है. चार्जेस के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके थे कि किसी बॉडी को न्यूट्रल कब कहते हैं और किसी बॉडी को चार्ज्ड कब कहते हैं. सो जस्ट सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई द कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Yes, to understand about the concept of conductor and insulator, I have taken here about the one example, that is metal, and that metal is copper. Is it okay? Now that particular copper having the atomic number 29, उस copper का atomic number कितना होता है आपका? 29. ठीक है. तो जब copper का atomic number 29 होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के हेल्प से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सी, the in the atom of the copper will have the nucleus. This is one is the called first nucleus, and around it the electron revolving around the nucleus in its orbit. This is the first orbit, this one is called the second orbit, this one will have the third orbit, and so on. It will be continuously going on. So we have just to just fulfill about atomic number 29 only. So see, in the first orbit maximum we can fulfill it by 2 electrons. So in the first orbit we'll have only 2 electrons, in the second orbit we'll have 8 electrons, and in the third orbit we'll have the 18 electrons. ठीक है. Then 2 and 8 how
मच इट विल बी 2 and 8 10 and 10 and 80 28. Now just to make 29, how much electron now required? Only one, is it? So in the last orbit or the valence in valence shell will have one electron. That particular one electron is called the free electron. उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. ठीक है. जब हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल्स के अंदर अपना मूवमेंट करना शुरू करते हैं. वो मूव करते हैं एज यू कैन सी हियर इन द फिगर. इस फिगर में आप देख सकते हो कि हाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द मेटल्स. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो किस तरह से मूव कर रहे हैं. एंड दैट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस करेंट इन अ कंडक्टर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि मूव करते हैं जिसके वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्योंकि करंट का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया था तो हम लोग उसमें सबसे पहला पार्ट क्या देखा था, देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ चार्जेस. वहाँ पे चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी है, अनिवार्य है. ठीक है. नाउ दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल ऑफ कॉपर दैट मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. जैसे ही उस कॉपर मेटल को एनर्जी दिया जाता है, आउटसाइड से कोई एनर्जी मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू कर जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं. दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दैट पर्टिकुलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स द कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यही एक ये है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में करंट में को प्रोडक्शन या करंट को प्रोड्यूस करता है. इज इट ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंसुलेटर में क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं. क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंसुलेटर में मूव नहीं करते हैं. तो ऐसा क्या होता है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है. सो फॉर दिस वी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम. सी हियर. For that I have taken one example that is of copper. ये आप कॉपर का आप देख चुके. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन. दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली हेल्प्स द conductor to conduct electricity. Now see the example of the carbon. Carbon is one of the non-metal and I hope that it is not conduct electricity. आप ये सब जानते हो कि कार्बन एटम्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. इट इज़ एन इंसुलेटर. एन इंसुलेटर मीन्स व्हाट, द मटेरियल द थिंग्स विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो आपका क्या होता है, इंसुलेटर कहलाता है. नाउ व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6. एटॉमिक नंबर कार्बन्स के कितने होते हैं, 6 होते हैं. तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम हम कितने फुलफिल कर सकते हैं, 2. देन हाउ मच रिमेनिंग विल हैव just to make 6, it is only 4. That 4 electron in the outermost orbit or the valence shell it is called the valence electron. ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को जो कि outermost orbit में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, valence electrons कहेंगे. अब ये ऑक्टेट रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट एवरी एटम्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जस्ट वांट टू मेक इट सेल्फ स्टेबल एंड फॉर मेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स वी रिक्वायर्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक है. उसको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हर एक एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में फुलफिल करने के लिए वो दूसरे एटम से एक्वायर्ड करता है, गेन करता है. जैसे ही उसको वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, अपने आप में स्टेबल बन जाता है. तो ये कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही टाइटली क्लोज पैकेजिंग होता है और वो क्लोज पैकेजिंग की वजह से वो एक दूसरे को स्टेबल बनाने में ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में बहुत बिजी होता है. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है.
कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स किसी को देते हैं और कुछ लेते हैं, मीन्स शेयरिंग करते रहते हैं एक दूसरे से ही, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लोज पैकेजिंग बन जाता है, जस्ट फॉर व्हाट ओनली, जस्ट टू मेक देमसेल्फ स्टेबल। एंड इफ they will get stable, then just there after that there will be have a close packaging। जब उन दोनों में एक क्लोज बॉन्ड बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। क्यों बन जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? बिकॉज एवरी एटम्स जस्ट मेक अदर्स टू बी स्टेबल, और खुद को भी स्टेबल बनाना चाहते हैं। जिस स्टेबिलिटी के वजह से अपने आप को और दूसरे के बगल वाले एटम्स को स्टेबल बनाने की वजह से वो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो वहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो वो मूव कब करेगा? हम लोग कब घूमने जाते हैं, हम लोग कब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? जब हम फ्री होते हैं। कब फ्री होते हैं? या तो एग्ज़ाम से फ्री होते हैं, या तो अपने पढ़ाई से फ्री होते हैं, या अपने काम से फ्री होते हैं, तो घूमने जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होंगे जब भी वो घूमने जाते हैं, जब भी वो मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटल के केस में, कार्बन के केस में आपने क्या देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को स्टेबल बनाने में लग गए हैं। जब दूसरे को स्टेबल बनाने में लग गए हैं तो वो एक दूसरे को स्टेबल बनाने के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल ही नहीं रहा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा तो वहाँ पे चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। एंड इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, देन व्हाट हैपन्स? देयर इज नो कंडक्शन ऑफ current, or we can say electricity. This is what actually means. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। Now I hope that you are going to understand why the conduct electricity and why the insulator does not conduct electricity. Because insulator does not have free electron. Why they don't have the free electron? Because they just start to make themselves and others to be stable. ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को और दूसरे को स्टेबल बनाने में लग जाते हैं, जिसके वजह से उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वाइल इन केस ऑफ द मेटल्स विल गेट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करते हैं? मूव करना शुरू कर जाते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन पे आ जाए। एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर और स्पेस। जब कोई भी चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस किसी भी कंडक्टर में या किसी भी स्पेस में मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, करंट का मूवमेंट होता है। एंड दैट इज़ मेजर्ड एज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम उसको मेजर्ड करने लगते हैं, उसका रेट का फॉर्मेशन करने लगते हैं, देन that is what we called it electric current. So the definition of the electric current is the rate of flow of electric charge or electrons through a conductor. रेट का इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस मूव कर रहा है तो उसमें रेट आगे लग गया। तो उसके लिए रेट बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा? उसे टी से डिवाइड कर देना होगा। जैसे दिस का पर्टिकुलर करंट, this particular current is represented by the letter I। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आई सेड, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। एंड रेट बनाना अगर हो तो हम इसे क्या कर देंगे? T से डिवाइड कर देंगे। एंड दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस in any conductor or through a conductor, that is what we called it current। उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और करंट जो है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम लोग ऑलरेडी स्केलर और वेक्टर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर।
स्टैंडर्ड यूनिट करंट का क्या है, वो एम्पियर है। इसके अलावा इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है कूलम पर सेकंड भी होता है। कैसे? दैट इज व्हाट 1 एम्पियर विल हैव, as I have said that the ampere is the standard unit of the current, and this ampere is represented by the letter A. What is the unit of Q? That is coulomb. And what is the unit of the standard unit of the time? Second. So 1 ampere is equal to coulomb per second. So we can write the standard unit of the current either ampere or coulomb per second. Its direction, the direction of the current is taken opposite to the flow of electron. This one is conventional. ये conventional है, इसका कोई भी reason नहीं होता। जो भी conventional होता है उसका reason नहीं होता है। That you see in the first page of the chapter electricity in your book, NCERT book, कि that is the direction of the electric current is always opposite to the direction of the इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। एंड इट फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वही जो करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड दैट इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली across the end of the conductor. And about this potential difference we will see in the next video. This is the next topic of the same chapter. I hope you understand about the concept of the current. What it simple definition, there is simple definition, the rate of flow of current, but you are seeing that how we just discussing about the conductor, insulator, and after that we will get this small line, a one line statement, the definition of the current. The rate of flow of electric charges or electrons through a conductor is called the electric current. And we also understand why the conductor conduct electricity, because they contains the free electrons. But in an insulator it does not having any free electron. Why? Because they are just busy to make themselves and others to be stable by the help of just to fulfill the rule octave rules. नेक्स्ट पॉइंट जाने कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर है। फोर्थ पॉइंट इट्स स्केलर क्वांटिटी, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस, इट इज़ कॉल्ड अ मीटर। उसको भी ऐसे आप मोटर वगैरह में जो स्टार्टर्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि एक ये लगा होता है, ठीक है, डिवाइस लगा होता है जिसमें ए लिखा रहता है छोटा सा, तो वो फ्लो ऑफ करंट को बता रहा है कि इस पर्टिकुलर मोटर में कितने करंट जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो द डिवाइस दैट इज हेल्प टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वन टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर टू द अदर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट अ मीटर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिटेल्स था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट. So see the next thing in the next video. I hope that we will start very soon about the potential and potential difference and resistance. Just if you like my video, then please just help me to motivate. Thank you, and thank you so much.